Yes. Yes. Ask me anything else. I was asking to where have you been recently? That is, the been is used as the third form of be. Yes. Will have. Yes. Where have you been? कहाँ गए थे? कहाँ से आ रहे हो? I have been to lunch outside. And sir, I want to ask you a question that I haven't seen you for a quite while either. So what does it mean? मतलब तो काफी बहुत समय से नहीं देखा मैंने तुमको, नहीं मिला हूँ तुमसे। while either while means बहुत समय से? देखो क्या है, फिर से बोलो सेंटेंस। आई हैवंट सीन यू For quite while either. For quite a while either. अब सुन लो। जैसे मैंने बोला आई लाइक टी, ठीक है, अब आपने भी बोलना है आई लाइक टी टू। New message is received from BZHDFCBK. आपने बोला आई लाइक टी टू, यही बोलोगे ना कि मुझे भी पसंद है, ठीक। अब मैंने बोला आई डोंट लाइक टी, अब आपको भी बोलना है आई डोंट लाइक टी। अब क्या करोगे? We can't say I don't like tea too. नहीं बोलते ना, वही तो कह रहा हूँ, गलत होता है। तो क्या करेंगे? देखो आई लाइक टी टू, जब एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में दूसरा एफर्मेटिव आप जोड़ते हो उसी से रिलेटेड, तो टू लगाते हैं। जैसे आई लाइक टी, तो उसमें आई लाइक टी टू, मुझे भी पसंद है। अब मैं आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। हिंदी में तो बोलते हैं मुझे भी पसंद नहीं है, पर हिंदी में ईदर का यूज करना पड़ता है। आई डोंट लाइक टी ईदर, वहां पे टू नहीं लगाओगे आप, नेगेटिव में फिर ईदर आएगा वहां। आई डोंट लाइक टी, आई डोंट लाइक टी ईदर, तो वहां पे जो सेंटेंस बोल रहा है वो इसलिए ईदर यूज कर रहा है कि उसने पहले भी कुछ नेगेटिव बोला होगा। अब जैसे मैंने कहा आई डोंट लाइक टी, आई डोंट लाइक कॉफी ईदर, मतलब मैंने बोला आई डोंट लाइक टी, आई डोंट लाइक कॉफी ईदर, मतलब चाय पसंद नहीं है, कॉफी भी पसंद नहीं है। ऐसे भी बोल सकते हैं आई ऑल्सो डोंट लाइक टी। गलत है भाई साहब, वही तो बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। ऑल्सो नहीं बोल सकते, टू नहीं बोल सकते, ईदर। तो इसमें जो सेंटेंस उसने बोला है आई हैवंट सीन यू फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, क्या बोला उसने? फॉर क्वाइट अ व्हाइल ईदर। हाँ, वही मतलब वो इधर नहीं भी लगाओ तो भी ठीक है, अब लगाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी इच्छा है तो लगा लेने दो उसको। ओके सर। हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, I want to ask you a different question. That can we start a question from a negative word? That didn't you understand me? Like this. Is this correct? राइट। Doesn't you understand me?
गलत No. डजंट होता ही नहीं ना. Doesn't he? डोंट हाँ डजंट ही बोल सकते. Doesn't he understand me? Okay. डजंट ही अंडरस्टैंड मी, क्या वो मुझे नहीं समझता है. हाँ. नेक्स्ट. Now I am having many. मैनी. I finished my queries actually. हाँ तो पूछो ना. यू आर हियर फॉर आस्किंग मी, नो प्रॉब्लम. पूछते रहो. देयर शुड नॉट बी एनी एजिटेशन. Yes, sir. So should I speak on life in Mathura? Then I will, एज यू विश. हाँ because I will get some time. हाँ हाँ यस स्पीक. बोलो बोलो. So life in Mathura. Life in Mathura has both perspectives. It is good and it is bad too. Persons who want to lead their life peacefully, then Mathura will serve them as the better place, as the best place in this entire world. Because there are many religious places like temples, many religious places which are having direct connection with the Hindu sculptures. Like there is a birthplace of Lord Krishna, the place where Lord Krishna has served his childhood, and and many more. But on the contrary, there are many problems too. Like medical, we are lacking in the medical facilities, educational facilities. There is a lot of problem of sanitation, and we don't have enough hospitals here, not big colleges, and many more problems. So it is up to us how we want to lead our life. So in conclusion, I would like to say that if we want to live our life peacefully and don't want to be ambitious, then Mathura is the best place in the entire world. Thank you. Okay. Did I complete any mistakes, sir? Okay. So now you may ask me the problems, queries. So I have finished them, most of them. Okay. I am not remembering. So let's have some discussion, sir, on topic if we have some time. Sure. So it will be conversational practice. Okay. I ask you, okay, I tell you a story here. Who is there? I tell you a story of a king. Yes, sir. It is in past tense. There was a king. Yes, sir. He had 3 sons. All the 3 sons used to quarrel with one another. One day, but the king was very much worried for them. One day, king fell sick. अब देखो fall sick का मतलब होता है बीमार पड़ना.
तो फेल सिक, अब वो फेल का मतलब ये नहीं कि गिर पड़ा, बीमार पड़ गया। इसी तरह ईच अदर दो लोगों के लिए आता, वन अनदर यूज किया मैंने दो से ज्यादा के, एक दूसरे के लिए। तो दे यूज टू quarrel with one another. The king was very much worried for them. One day king fell sick. He called all the sons in his room. When they reached there, they saw a bundle of sticks tied up with a rope lying on a table. The king asked his youngest son to break the bundle, but he couldn't. Then king asked his next son to break the bundle. He couldn't either. अब देखो, he couldn't either, वो भी नहीं तोड़ पाया। He couldn't either. King asked his eldest son to break it. He couldn't either. King untied the bundle and asked his youngest son to break each stick one by one. He broke all the sticks one by one quite easily. King told them or taught them the unity always has strength. This is the story. Yes, Okay, sir. so speak. Repeat now. Okay, there was a king who has 3 sons. Who had? Sorry. There was a king who had 3 sons. Hmm. They always quarreled with each other. Each other नहीं, one another. One another. Okay. They quarreled with one another. So, king wanted them to taught a lesson to them. Wanted them to learn. देखो, What's the pardon? wanted them to learn बोलो, या wanted, king wanted to teach them बोलो। समझो, king wanted to teach them a lesson या king wanted them to learn a lesson। क्लियर? मतलब अगर हम पास्ट में हमने एक शब्द का यूज कर लिया पास्ट में, तो फिर दूसरी वर्ब जो होगी उसको नॉर्मल यूज करेंगे। अगर टू के बाद है, अगर टू के बाद नहीं है, वैसे ही आ रहा है, तो सारी सेकंड फॉर्म में आएगी। अच्छा, और सिर्फ सिंपल पास्ट का यूज करना है हमको। देखो, आई वॉन्टेड टू गो देयर, यस, तो टू आ गया, तो उसके बाद तो वी वन ही आएगी। मेक टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय वी वन, टू के बाद वी टू थोड़ी आएगा। यस, लेकिन अगर दो बार एक साथ यूज कर रहे हो और दोनों पास्ट में है, तो वी टू दो भी हो सकती है। आई sang a song and danced there, अब दोनों बनेंगे, चाहे कितनी भी हो, सब वी टू बनेंगे। I sang a song and danced there, and I played a guitar, and I had food, and I went to toilet, कुछ भी बोलते रहो, आप went to toilet, कुछ भी बोलो। अगर सारी वर्ब एक साथ यूज कर रहे हो, टू के साथ नहीं, तो सब वी टू आएंगे। then king wanted them to teach a lesson. नहीं यार, Wanted them टू to लर्न। teach. अब आप बोलोगे किंग वांटेड देम टू टीच अ लेसन, तो किसको सिखाना चाहता था? मतलब वो अपने लड़कों को चाहता था कि वो किसी को पढ़ाएं, सिखाएं, वो चाहता था वो खुद सीखें। Oh, sorry. किंग वांटेड देम टू लर्न। हाँ, किंग वांटेड टू टीच देम, तो सही हाँ। था। Yeah. किंग वांटेड टू टीच देम, किंग Hello. पढ़ाना चाहता था उनको, या किंग चाहता था कि वो सीखें, अब वो पढ़ाएं थोड़ी, सीखें। Okay. क्लियर?
I got that, sir. So the king wanted to teach them a lesson. So he called them in his room, and then he united many pieces of wood with each other and gave them to the last son and asked him लास्ट to break लाइन में खड़े थे क्या वो? to younger son, youngest third son. देखो when they entered, आराम से बोलो, कंफ्यूज नहीं, हमेशा कोशिश करो। पास में बोल रहे सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट को निकालो V2 लगाओ, सब्जेक्ट निकालो V2 लगाओ, कुछ नहीं करना। और ज्यादा आप कंफ्यूज नहीं हो, सब्जेक्ट निकालो V2 लगाओ। तो king called them in his room. Yes. अब लड़के आएंगे। They All entered. the sons reached there. अब they saw, देखा, they saw क्या? A bundle of sticks. Yeah. कैसा? Tied up with a rope, रस्सी से बना हुआ, lying on a table, टेबल पे रखा हुआ। ठीक? He called his sons in his room. Called नहीं, अच्छा हाँ वहां से चल रहा है, ठीक है। He called his sons in his room. Then his sons entered into the room and saw that a bundle of sticks was lying on the table. And he asked his youngest son break it. To break it. To break that bundle. He tried many times, but he was unable to break it. Then he asked his second son to do the same. But the same would happen to this son also. मतलब उसके साथ भी ये हुआ. Sorry, the same happened to that son also. जरूरत ही नहीं बोलने की, उसके साथ ये हुआ या वो भी नहीं तोड़ पाया, कौन सा कहना सही है? अननेसेसरी मत बढ़ाओ उसको, ही couldn't either, बस Yeah. सिंपल। Sorry, sir. He asked his second son to do the same, and he couldn't either. Then he asked his eldest son. Then he also couldn't do either. Also नहीं, We can use second time since couldn't either. और क्या, कितनी बार हो, 1000 बार हो। Okay. Then he couldn't either. Then he break this bundle and give one sticks to each one of them. Give. उसने बंडल थोड़ी तोड़ा, उसने खोल दिया। Untied. King untied the bundle. King untied the bundle. Untied is first form. Your three forms are same. देखो, टाई मतलब First. बांधना, Yeah. टाइड इसकी सेकंड फॉर्म, खोलना, गांठ लगाई, गांठ खोली, अनटाई, अनटाइड
ओके एक होता टाई या नॉट, इसका मतलब जानते हो ऐसा नहीं? यस, क्या? हाथ बांधने को भी कहते हैं, और जो टाई होती है उसकी नॉट क्यों बांधने को भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? नॉट। अपनी जिंदगी में कोई ऐसा लेना है, कोई प्रतिज्ञा टाइप लेसन सीखना हो तो टाई एंड नॉट। नहीं, टाई या नॉट होता शादी करना। ठीक है, ओके तो जैसे उसने शादी कर ली है, ही हैज टाइड अ नॉट। ठीक है, तो टाई नॉट का मतलब शादी करना भी होता है। बंधन जोड़ना, बांधना। हाँ, या बस बंद गया तो फंस गया बेचारा। चलिए क्या, then he untied the bundle and gave one sticks to each one of them। वन वन नहीं कह सकते अपन ऐसे, हिंदी में चल जाता है एक एक लकड़ी दे दी, हिंदी में नहीं चलता वन वन लकड़ी। तो क्या हुआ, ही अनटाइड द बंडल एंड आस्क्ड his youngest son to break the sticks. Clear? Pardon sir? He untied the sticks, or he untied the bundle, and he asked his youngest son to break the sticks one by one. एक के बाद एक तोड़ने को कहा उसने। He broke all the sticks one by one, quite easily, बड़े आराम से। So instead of saying one, we should say one by one. One by one, एक के बाद एक। अगर आप ये कहना चाहते हो हर एक को एक लकड़ी दी उसने, और हालांकि वहां नहीं दी है स्टोरी में, अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है तो he gave each of his son a stick। तब ऐसे बोलो, he gave each of his sons a stick। तब होगा वो, हर किसी को उसने एक एक Each of his son, he gave each of his son a stick। each of his sons, Sons, a stick। a stick। Okay। ठीक है, ओके। तो इस स्टोरी को एक बार लिखिए आप, दैट इज योर होमवर्क। ओके सर। इसको लिखो एंड राइट सम क्वेश्चंस ओके सर। एंड योर एम इन योर लाइफ, और सर? योर एम इन योर लाइफ, योर एम इन योर लाइफ, 20 questions and the story of a king। ये आपका होमवर्क है। ठीक है Sir, I want to ask you a very simple and last question. हाँ, It won't take a single more than 1 or 2 minutes. My question is, why we consider word WORLD word विश्व as a singular? क्या? Why we consider the world as a singular? तो संसार तो एक ही है ना, चार थोड़ी है। And people will say, लोग कहेंगे, हाँ, like why people तो बहुत सारे लोग हो गए ना, हो गए ना। people says, people को सिंगुलर क्यों कहेंगे सर, ने पूछा। अब सुनो, आप सुनो, दिस इज योर रूम। यस सर। रूम हैज गॉट मेनी थिंग्स इन इट। इस कमरे में बहुत सारी चीजें हैं। यस। टेबल है, चेयर है, और भी कुछ हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, व्हाटएवर।
But when you are talking about a room, you say that room has got. Room is a singular identity. Room contains many things in it. तो रूम तो एक ही है ना. वर्ल्ड रेस्ट ऑन पीस. संसार शांति पे चलता है. तो वो सिंगुलर आइडेंटिटी होगी. लेकिन लोग तो बहुत सारे हैं ना. लोगों की बात कर रहे हैं. पीपल डोंट लाइक इट, तो वहां पे प्लूरल की तरह यूज होगा पीपल. तो हम क्या कहेंगे, पीपल सेस कि पीपल से? पीपल से, नॉट सेज. पीपल खुद में ही एक प्लूरल है. हमको पीपल्स पीपल्स प्लूरल ही होता है. कुछ लोग पीपल्स बोलते हैं, पीपल सिंगुलर होता ही नहीं. क्या कुछ लोग पीपल्स कहते हैं, तो वो रॉन्ग है. उनको मेरे पास भेजना. जो एस लगा देते हैं उनको कहना सर से पढ़ लो. ठीक है. पीपल्स नहीं होता कभी. पीपल खुद ही प्लूरल है. तो एस क्यों लगा रहे हैं उसमें? जो लगाते हैं वो जानते नहीं है और मानते भी नहीं. यस, That is their problem. Don't worry for them. You can't teach an old dog new tricks. This is a proverb यस सर. in English. You can't teach an old dog new tricks. मतलब अब इसका हिंदी में क्या बोलेंगे वो मुझे थोड़ा भूल गया. मतलब इसका ये है कि जो लोग पुराने हो जाते हैं ना, उनको आप फिर ज्यादा नई चीजें नहीं सिखा सकते आप. और हिंदी में उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं. उस्ताद बन चुके होते हैं, अपने मन में वो शागिर्द नहीं बन सकते. वो समझते हैं बन गए हैं उस्ताद, पर होते नहीं है उस्ताद. तो कोई जो अपने मन में अपने को उस्ताद समझते हैं, होते नहीं है, पर वो कभी बन नहीं सकते. जबकि एक असली उस्ताद वो है जो हमेशा शागिर्द बना रहे हैं अंदर से. क्या बात है. वेरी नाइस. है ही. थैंक यू. लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. यस सर. वो कभी खत्म नहीं होता. चलिए तो मिलते हैं फिर. हैं डे आफ्टर टुमारो सर. डे आफ्टर टुमारो आई मे बी बिजी. आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरे एक प्रोग्राम है, मीटिंग है. व्हेन विल यू डिसाइड एंड लेट मी नो. कल लेना है तो कल ले सकते हो. सर थोड़ा होमवर्क ज्यादा है सर. तो चलो फिर देखते हैं. if I am not free on Sunday, I'll send you message. On my phone or we can start little late, no problem. I'll send you a message. on Skype or an SMS. नहीं, Skype पे भेज दूंगा. ठीक है सर Skype का मेरा एक प्रॉब्लम है सर कि मैं ये मेरे लैपटॉप पर है Skype, तो मैं इसको खोलता जब ही हूँ तो क्लास करनी होती है. एंड्रॉइड में भी कर लो ना यार Skype का ऐप. वो जो एंड्रॉइड का Skype है वो अलग होता है. उसमें वो आते हैं जिनके हमारे पास फोन नंबर, वो फोन नंबर से कनेक्टेड है सर. नहीं है दादा, ये मेरा इसमें भी हैगा दादा. मैं तो यहीं से करता हूँ काम. हर समय थोड़ी मैं Skype कंप्यूटर डेस्कटॉप लेके घूमता हूँ दुनिया में. माय मोबाइल इज ऑलवेज विद मी and I am always connected with my student all the time. Okay sir, I will try. तो आप उसको सेम वही का वही ऐप है, उसी लॉगिन आईडी से करो ना. आप आपने दूसरी आईडी से वहां लॉगिन कर लिया होगा. Okay. जो आईडी आपने कंप्यूटर पे बनाई है उसी आईडी से लॉगिन करो ना ऐप के अंदर. तो जो यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा. आपने वहाँ रजिस्टर कर लिया होगा फोन नंबर से. हाँ ये हो सकता है सर. हाँ यही हुआ है. इट माइट हैव. तो ऐप को वहाँ कर लो तो वहाँ मैसेज तुरंत आ जाएगा आपके पास. मैं यहाँ से भेज. ओके सर, आई विल ट्राई सर. अगर वो नहीं तो आप इसमें भी पढ़ सकते हो ना. फिर जरूरी नहीं है इससे करो. हाँ इसमें नेट है, इससे ही कर लो. ये बात भी सही है. वो भाई अच्छा स्पीड भी आएगा फिर तो. हाँ इसमें अपना वो लगाओ हेडफोन, कान में लगाओ, इसको रखो सामने
और बस पढ़ लो। जैसे फ्रेंड्स वगैरह से वीडियो चैटिंग करते हैं वैसे ही बस है, बस ये उसमें दिलचस्पी आता है। ये कर सकते हो, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना और उस पर ट्राई करना क्लास अगली बार। थर्ड लैपटॉप, क्लास है सर, हाँ तीसरी क्लास हुई है सर ये। हाँ, ये तीसरी हो गई। ओके, ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते सर, चैनल स्पर्श। नमस्ते नमस्ते, बी ब्लेस्ड। थैंक यू सर।